Hello everyone, in this video we'll be talking about all the concepts related to the chapter motion in one dimension. Alright, so when I say motion in one dimension, what I mean is a particle is moving along a straight line. ठीक है, तो अगर एक particle straight line में move कर रहा है, so the best straight line that I could imagine is the x-axis. ठीक है, now I'll be defining a couple of terms या physical quantities which would help me study the motion of this particle. So those terms are, first one is position. Now position is actually the x coordinate of the particle. जो भी उसका coordinate है, if it's moving along the x axis उसका x coordinate रहेगा, and if it's let's say moving along the y axis, ये origin, and if let's say it's moving along the y axis, then उसका कौन सा कोऑर्डिनेट रहेगा y, और अगर वो z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा तो वो क्या रहेगा z रहेगा. ऑलराइट, तो x y या फिर z इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस पोजीशन. अभी ये पार्टिकल यहाँ है, अगर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है दैट मीन्स ओरिजिन के इस तरफ होगा, और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है मतलब इस तरफ रहेगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली व्हाट, it is simply the change in that position. ठीक है, तो the change in position is denoted by delta x. Now I'm not going to write for y and z, I'll be only talking about x coordinates, and जहाँ जहाँ use होगा मैं वहाँ y और z का usage करूँगा. अभी फिलहाल मैं सिर्फ x denote कर रहा हूँ. ठीक है, so displacement is simply the change in that position. ठीक है, अभी particle x, let's say x is equal to 3 पे, बाद में x is equal to 5 पे, तो what is that change? It is the final x coordinate minus the initial x coordinate, and if it's moving along the y axis, it is the final y coordinate minus the initial y coordinate. All right, now velocity basically tells you how velocity will tell you how fast is that particle moving. ठीक है, तो इसमें दो चीजें होते हैं, एक होता है एवरेज वेलोसिटी एंड दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसको अपने या ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर वी करके डिनोट कर देता हूं. इट इज सिंपली द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ऑलराइट, एंड जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इट इज सिंपली v, एंड दिस कैन बी रिटन एज, देखो अब हम लोग करेंगे क्या, विल डिक्रीज द टाइम इंटरवल बाय मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल कर देंगे. सो इफ दैट टाइम इंटरवल डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, वी कैन राइट दैट टाइम इंटरवल टू बी dt, and the corresponding displacement would be again very small, so it would be dx by dt. All right, now similarly fourth important physical quantity that we are supposed to study is acceleration. So acceleration is simply the rate of change of velocity. How is the velocity itself changing? Okay, तो इसका भी again you have two types. एक होता है average acceleration can be written as like this, या फिर AAV लिख देता हूँ, and it is simply total change in velocity by total time. All right, and similarly you have instantaneous. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो रहेगा A, it is simply टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा कर देंगे तो this becomes what, dv by dt. All right, now apart from these four we have two more physical quantities. ठीक है, what are they? Distance. ठीक है, now what is distance? It is simply the path length. कितना, length of the path, length of the path. ठीक है, and I'll just call this distance as delta s. delta s से डिनोट कर देता हूं मैं, and the next one is speed. okay, तो speed कुछ बुक्स उसको v करके डिनोट करते हैं, आपको जैसा लिखना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. speed basically implies what? it is simply distance. speed is simply distance divided by time. All right, so these are the six major physical quantities that would be that we'll be looking into in this chapter, and we'll be only dealing with one dimensional motion. All right, now
इसके अगर आप यूनिट्स के बारे में बात करें, सो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ऑल दीज थ्री वुड हैव द सेम एसआई यूनिट, दैट इज मीटर. वेलोसिटी का SI unit, velocity and speed will have the same SI unit, that is meter per second, and acceleration का जो SI unit रहेगा that would be meter per second square. And you should be knowing कि how do you convert meter per second to kilometer per hour and vice versa. So if you want to convert kilometer per hour to meter per second, all you need to do is multiply by 5/18. all right. एंड अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18/5. ठीक है. सो यू नो ऑल दीज थिंग्स. ये तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको बचपन में भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया रहेगा. ठीक है. एंड इवन यू मस्ट हैव स्टडीड इन, यू वुड हैव स्टडीड इन क्लास 11th. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट वील लुक एट द रिलेशंस बिटवीन ऑल दीज क्वांटिटीज. ओके. ऑल राइट. नाउ लेट्स लुक एट द relation between position, displacement, velocity and acceleration. All right. Now first important relation is average velocity. Average velocity क्या होता है? It is total displacement by total time. ठीक है. Second one is instantaneous velocity. It is simply dx by dt. Third is acceleration, average acceleration. Average acceleration is delta v by delta t. And fourth is instantaneous acceleration, which is dv by dt. ये हमने ऑलरेडी पहले भी मेंशन कर रखा था. ठीक है. नाउ इसमें देखो कि और कुछ और रिलेशन बन सकते हैं कि नहीं. सो लेट्स सी. देखो एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैन यू सी दैट ये dv बाई dt है तो v itself is dx by dt. So this can be written as d square x by dt square. That is the second derivative of position. Right. Now next, देखो if you multiply dx and multiply and divide by dx in this equation at the RHS, तो dx by dt into dv by dx मिलेगा and dx by dt is v. So you can write a is equal to v dv by dx. All right. So a is equal to v dv by dx. Now what else can you do? राइट. ये हमने सारे डिफरेंशिएशन के बेसिस पे जो भी इक्वेशंस बन रहे हैं वो सारे रिलेशंस हमने लिख दिया. ठीक है. ना इसके बेसिस पे हम लोग जो इंटीग्रल फॉर्म से रह सकते हैं. इंटीग्रल फॉर्म मतलब क्या होगा, इसको स्लाइटली हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं. तो इफ आई रीअरेंज देम, देखो इफ आई रीअरेंज दिस वन, देखो dx को क्या लिख सकता हूँ, v dt. सो व्हेन आई इंटीग्रेट दैट आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट इंटीग्रल dx एंड इंटीग्रल dx इज सिंपली डेल्टा x. ठीक है. सो डेल्टा x कैन बी रिटन एज, पहली बात तो इधर से क्या लिख सकता हूं मैं, v average into delta t, and here from here I can write it as integral v dt. All right. तो ये दोनों को मर्ज करके मैंने ये इक्वेशन लिख दिया. I hope you can understand that. And similarly, if I merge these two equations, I'll get the following, which is delta v, change in velocity, is equal to average acceleration into total time interval is equal to integral of a dt. ऑलराइट. ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स में कि अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो आपको वो पोजीशन देगा, तो वो पोजीशन नहीं देगा, आपको चेंज इन पोजीशन देता है. ठीक है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली व्हेन यू इंटीग्रेट एक्सेलरेशन, you will give you will get change in velocity, not the velocity itself. Alright. Now similarly, if you look at this one right here, sixth equation को देखे तो sixth equation को slightly मैं rearrange कर दूँ, so what do I get? तो this is going to be integral a dx. Integral a dx will give me what? Integral v dv. Now integral v dv, चलो मैं लिख ही देता हूँ इसको. Integral v dv from v1 to v2 is simply v2 square minus v1 square by 2. All right. So these are the 9 key
relations between all these quantities. All right. Now let's look at a very special case of constant acceleration. Let's say that the acceleration of the particle is constant. All right. तो अगर acceleration of the particle is constant, you know that you'll get 5 equations, जो कि हमने प्रीवियस जो जस्ट पहले मैंने जो इक्वेशंस लिखे थे उसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके एंड एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करके इफ यू एनालाइज यू विल गेट द फॉलोइंग इक्वेशंस, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड इज s विच इज इक्वल टू डेल्टा x, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं, एंड वो s क्या होगा, इट इज डेल्टा x विच इज x इनिशियल x माइनस x नॉट which is equal to ut plus half at squared. All right. Then third one is v square is equal to u square plus 2as, और s का वैल्यू ये लिख सकते हैं. Then fourth one is average velocity which is simply s by t which is also equal to v plus u by 2. Now let me tell you, ये v plus u by 2 जो है it is only valid if acceleration is constant. अगर acceleration constant नहीं है तो ये वाला equation नहीं use कर सकते आप. It is very very important कि आप ये ध्यान दें. ठीक है. Now the fifth equation is the displacement in nth second. ठीक है. तो nth second में जो displacement होगा तो that is simply displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 seconds. And इसका जो वैल्यू रहेगा इट इज गोइंग टू बी u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. सो दीज आर दी 5 इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. इसके बेसिस पे आप अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स भी हम लोग देख लेंगे. ठीक है. ओके तो हमने सारे की पॉइंट्स जो है इसका लिस्ट आउट कर दिया है. नाउ वील लुक इनटू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. लेट्स से देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस and ये origin है and let's say the particle is here x and इसका velocity है v and इसका acceleration है a. all right. now इनके कुछ sign होंगे. ठीक है. now you should understand that along a straight line you could have only 2 directions, that is either it's positive, मान लो ये direction हो गया positive direction and ये जो direction हो गया वो negative direction. तो स्ट्रेट लाइन मोशन में वेक्टर्स यूज करके कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है बिकॉज यू ओनली हैव 2 डायरेक्शन. सो जो डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है वो डायरेक्शन हमें किससे मिलेगा, द साइन ऑफ द क्वांटिटी. ठीक है. इफ द पोजीशन या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव दैट मीन्स इट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड अगर वो नेगेटिव है देन इट मीन्स इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. नाउ इसमें से लेट्स से कि देखो इसको मैं जस्ट आई लिस्ट इट आउट वेरी सिंपली. अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स अगर ये ओरिजिन है तो पार्टिकल इज हियर. ठीक है. अगर x का वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स द पार्टिकल इज हियर. अगर x का वैल्यू 0 है दैट मीन्स द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन. right now it is irrespective of where the particle is moving. कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, वो किधर है वो इंफॉर्मेशन आपको x का साइन बताएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी के साइन के बारे में बात करूं तो इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव दैट मीन्स irrespective of where the particle is, इसलिए मैं यहाँ पे ओरिजिन मार्क नहीं कर रहा, कहीं पे भी होने दो, it is moving towards the positive direction. all right. and अगर इसका वेलोसिटी नेगेटिव है दैट मीन्स इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. एंड इफ द वेलोसिटी इज 0 दैट implies the particle is at rest. This particle could be momentarily at rest or it could be rest for all time intervals. ठीक है. now what about acceleration? now acceleration का भी जो साइन रहेगा similar to velocity, it could either be positive, negative or 0. और अगर acceleration 0 है that means velocity क्या रहेगा, constant रहेगा. all right. now
लेट्स सी कि व्हाट डस द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज साइंस इम्प्लाई, ठीक है, कि मतलब अगर मान लो x पॉजिटिव है v पॉजिटिव है तो वो क्या इम्प्लाई करता है, x नेगेटिव v पॉजिटिव है तो क्या इम्प्लाई करता है. लेट्स लुक एट दैट. ऑलराइट, ओके. नाउ लेट्स से कि x and v have the same sign, ठीक है, x and v have the same sign. What does that tell you? That means you have two possibilities कि the particle is here and it's moving in this direction, ठीक है, or the particle is here and it's moving in this direction. देख सकते हैं. Either way you can clearly see that कि the particle is moving away from the origin, ठीक है. The particle would be moving away from the origin. देखो अगर x और v का साइन सेम हो मतलब दो, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, मतलब पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है. सिमिलरली इफ x and v have the opposite sign, तो उसका मतलब क्या हुआ. लेट्स से x is positive, मतलब पार्टिकल इज हियर, and v is negative, that means it's moving in this direction, ठीक है. And the other possibility is that x is negative and v is positive, ठीक है. तो ये देख सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, एंड इसमें दोनों में से आपको क्लियरली दिख रहा है कि द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है. द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द origin. All right, now let's look at the relation between the signs of A and V. Okay, now if A and V have the same sign, that implies the particle is moving towards positive direction and उसका acceleration भी positive, मतलब दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए. या फिर the particle is moving towards negative direction and the acceleration is also negative. Can you see that? So in both the cases what happens is कि let's say the particle is moving here and acceleration भी इसी तरफ होगा, मतलब इसका speed इस तरफ बढ़ेगा. That means the speed will increase. Standard misconception होता है स्टूडेंट्स का कि अगर acceleration negative हो तो speed घट रहा है, ठीक है. तो दैट्स नॉट द केस. यू विल हैव टू लुक एट द साइन ऑफ v एज वेल, कि अगर पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है एंड एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, मतलब स्पीड क्या होगा, उस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा होगा, ठीक है. नाउ सिमिलरली इफ एक्सेलरेशन एंड वी हैव ऑपोजिट साइंस, दैट मीन्स लेट्स से द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू इट, और the particle is moving towards the negative direction and the acceleration is positive. All right, now in this case you guessed it, speed will decrease, ठीक है, speed decrease होगा. So these are very very important points जो मैंने अभी चार relations बताया x and v के sign का and a and v के sign का. All right, okay, now let's look at some important cases of constant accelerated motion. All right, तो constant accelerated motion में एक इंपॉर्टेंट सा केस मैं ये बोल सकता हूं. द फर्स्ट केस इज दैट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है. तो इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0, इसका u का वैल्यू क्या रहेगा, 0, एंड एट t इज इक्वल टू t इसका कुछ तो वेलोसिटी होगा v एंड एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में. ऑलराइट, एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, वो डिस्प्लेसमेंट है s. ऑलराइट, सो अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको बताया, उन सारे इक्वेशंस में u का वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो. तो फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इज v इज इक्वल टू at. सेकेंड इज s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. थर्ड is v is equal to under root 2as, कि v square is equal to 2as होगा, तो v is equal to under root 2as. And similarly from this equation you'll get t is equal to under root 2s by a, ठीक है. And the fourth equation
Fourth equation would be V is equal to S by T, V average is equal to S by T, which will be equal to simply V by 2. ठीक है, half the final speed. All right. Now, and the fifth equation of course would be S nth would be A by 2 times 2n minus 1. इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सा है वो फॉर्मूला में अगर मैं बोलूँ तो दीज थ्री, ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लेट्स से द पार्टिकल इज एट रेस्ट, 2 सेकंड बाद वो कितना स्पीड से जा रहा होगा, तो जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ 2 सेकंड्स हियर एंड एक्सेलरेशन वुड बी गिवन टू यू. आपसे ये पूछा जा सकता है कि 5 मीटर्स ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो सीधा सीधा s का वैल्यू यहाँ पे 5 लगाओ, a का वैल्यू गिवन है एंड यू कैन फाइंड द टाइम हियर. एंड तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि 5 मीटर ट्रैवल करने के बाद उस पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, तो सीधा सीधा इधर s में 5 मीटर सब्स्टिट्यूट करो, a दिया हुआ है, तो यू कैन इजीली फाइंड v. ठीक है. सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन. एंड लेट्स लुक एट द other case where final velocity of the particle is 0. All right, matlab finally the particle comes to rest. All right, next special case is the particle comes to rest. Particle comes to rest मतलब v का वैल्यू क्या हो गया 0. एंड अगर v 0 है that means, ध्यान से देखें, what's the situation, पार्टिकल को इनिशियली मतलब t is equal to 0 पे कुछ स्पीड दे रखा था u, एंड आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट वो पार्टिकल क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया. ऑलराइट, एट टाइम t इज इक्वल टू t. ऑलराइट, सो इसमें v का वैल्यू क्या कर देंगे 0. तो इससे सबसे पहली बात तो ये है कि फॉर दिस टू हैपन एक्सेलरेशन हैज टू बी ऑपोजिट टू u. देख सकते हो एक्सेलरेशन और u का जो साइन रहना चाहिए, इट हैज टू बी ऑपोजिट, तभी तो वो स्लो डाउन होकर रुकेगा. राइट. सो इधर से जो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस मुझे मिलेंगे वो ये है कि t कितने टाइम में रुकेगा, इट इज सिंपली u बाई a. कितना रहेगा u बाई a. यू विल गेट दिस फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. v इज इक्वल टू u प्लस a, में v लगाओ, v को 0 लगाओ, u और a का साइन ऑपोजिट है, तो यहाँ से t का वैल्यू u बाई a आएगा. दूसरा जो रिलेशन है वो ये मिलेगा अपने को कि s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a. ठीक है, s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a. यू विल गेट दिस रिलेशन फ्रॉम the third equation. ठीक है. एंड सिमिलरली अपने एक और इक्वेशन से अपने ये मिल जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो you'll get displacement by time which is equal to simply in this case u by 2. ठीक है. एंड these two equations are really important, first and second, क्योंकि आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितने टाइम में रुकेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन करना है. और कितना दूरी जाके रुकेगा तो आपको सिंपली क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी को स्क्वायर करना है एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स दी एक्सेलरेशन करना है. ठीक है. सो दीज आर अनदर इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस. नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, दैट इज फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी नियर द अर्थ सर्फेस. ऑलराइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. ठीक है. तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आप बहुत सारे सेट ऑफ फॉर्मूले मत याद रखिए, लेकिन एक बेसिक आइडिया ये रखिए कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जहां से भी फेंके गिराए जहीं से भी हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या कर लो, ओरिजिन मान लो. लेट्स से विल लुक एट अ स्मॉल केस कि लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल एंड इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स. ठीक है. एंड वी नो दैट कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, g downwards. So what's going to happen here? क्या होने वाला है इस पार्टिकल के साथ, ये ऊपर जाएगा और ये ऐसे नीचे आके सेम इधर आके टकराएगा. राइट. एंड सबसे ऊपर, जब ये सबसे ऊपर रहेगा, what's going to happen, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा 0. ठीक है. और ये जब यहाँ आया तो उसका वेलोसिटी लेट्स से v है. ऑलराइट. नाउ इधर से इधर ये कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन किया है h. ठीक है. एंड लेट्स से दिस इज t इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज t इज इक्वल टू t. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टाइम लगेगा और वहाँ से यहाँ आने का जो टाइम लगेगा, दैट विल बी सेम. ठीक है. यू कुड चेक इट आउट. एंड लाइक आई सेड, फ्री फॉल मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दैट इज कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ड्रॉप को ही अपने क्या लेंगे, ओरिजिन। ठीक है। नाउ पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, इट इज प्योरली ऑन यू। आप चाहे तो नीचे की तरफ नेगेटिव ले सकते हैं, नीचे की तरफ पॉजिटिव ले सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले सकते हैं। और बिल्कुल भी ये आपके दिमाग में मत रखना कि अगर जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो जी नेगेटिव और नीचे आता है तो जी पॉजिटिव, ऐसा नहीं लेना है। एक सिचुएशन में एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। अगर आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया तो जी क्या रहेगा, नेगेटिव, और अगर आपने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया तो जी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है। नाउ तो बेस्ड ऑन दिस, इन दिस सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक यू टू अंडरस्टैंड इज, देखो इधर से ऊपर जाते समय वाला सिचुएशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो दैट मीन्स कि h का वैल्यू क्या होगा, इफ यू यूज s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2 है, यू विल गेट u स्क्वायर बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। समझ गए, राइट? इससे जस्ट पहले मैंने जो स्पेशल केस पढ़ा उसके बेसिस पे। दूसरा चीज, जब ये इधर से इधर जाएगा तो उसको टाइम कितना लगने वाला है, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर इट टू रीच द टॉप। तो टाइम टेकन जो रहेगा, लेट्स कॉल दिस टाइम टी डैश नाम दे देता हूँ। तो इधर से मुझे ये पता चल गया टी डैश का वैल्यू क्या रहेगा, u बाई जी। कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में। ऑलराइट, नाउ सिमिलरली इफ यू यूज द third equation of motion, that is v square is equal to u square plus 2as, तो you can see that वो ऊपर जाके वापस नीचे आया, मतलब s क्या हो गया, 0। तो अगर s 0 है तो v square is equal to u square, मतलब v is equal to u। Now in this case you can say that कि the particle is moving down, तो u और v का साइन क्या रहेगा, ऑपोजिट। तो the other thing that you could see is v का वैल्यू would be minus u। जितने स्पीड से ऊपर फेंकोगे उतने स्पीड से वापस नीचे आएगा। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि ऊपर नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा u बाई जी, तो ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना रहेगा, दैट इज t माइनस टी डैश। तो t माइनस टी डैश भी क्या रहेगा, v बाई जी होगा। ठीक है। और v बाई जी को क्या लिख सकता हूं, u बाई जी, एंड उसके हिसाब से मुझे t का वैल्यू मिल जाएगा 2u बाई जी। तो इफ यू कंपेयर दीज टू वैल्यूज यू कैन सी दैट जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ठीक है। दिस मोशन वुड बी फेयरली सिमेट्रिक, मतलब अगर लेट्स से एक सर्टन हाइट h पे, यहां से एक रैंडम हाइट h ले लेता हूं, तो इधर इसका अपवर्ड स्पीड जो रहेगा वही स्पीड से वो नीचे भी वापस आने वाला है। ऑलराइट, सो एंड जितना टाइम उसको यहां से यहां लगा उतना टाइम उसको यहां से यहाँ लगने वाला है। ठीक है। एंड जितना टाइम उसको यहाँ से ऊपर पहुंचने में लगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। और अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आगे के मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में टाइम बचेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन एज इट इज। ऑलराइट, नाउ इफ आई वांट टू जनरली राइट द इक्वेशंस, इसके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखने हैं, तो लाइक आई हैव सेड कि मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या ले रखा है, ओरिजिन। नाउ आई हैव टू डिटरमाइन कि इसका पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है। सो आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फर्स्ट इक्वेशन कैसा लगेगा, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कैसा रहेगा, h इज इक्वल टू, ऐसा लिख लूंगा ना, h माइनस जीरो। h माइनस जीरो क्यों लिखा, हाइट एट एनी इंस्टेंट माइनस इनिशियल हाइट विच इज 0 इज इक्वल टू क्या रहेगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों किया, क्योंकि a का वैल्यू माइनस जी होगा। ऑलराइट, एंड सिमिलरली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है। तो दीज आर द 3 मेन इक्वेशंस जो आप इसमें से बना सकते हैं। ऑलराइट, now let's look at a case where you drop a particle from a certain height. Now let's say you drop a particle from a certain height, h height से आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने का मतलब u क्या होगा इसका, 0। तो ये नीचे आते आते एक सर्टेन वेलोसिटी गेन करेगा v, एंड उसको कुछ टाइम भी लगेगा t। इसको खैर क्या कहते हैं अपने, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जितना टाइम। और इवन इन द फर्स्ट केस जब वो नीचे से ऊपर फेंका तो जितना टाइम लगा उसको ऊपर जाके वापस आने में, उसको भी क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन दिस केस टाइम ऑफ फ्लाइट वुड बी द टाइम टेकन टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ऑलराइट,
तो ये 2-3 चीज़ें मैं इसमें से पूछ सकता हूँ. तो यू कैन क्लियरली सी दैट इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट. तो यहाँ से first thing that I could get is the time of flight, which is simply under root 2h by g. You can see that it comes from under root 2s by a. S का वैल्यू h होगा एंड a का वैल्यू g होगा. ऑलराइट, ठीक. एंड देन जो दूसरा चीज पूछा जा सकता है कितने स्पीड से गिरेगा, तो कितने स्पीड से गिरेगा वो अंडर रूट 2as, a का वैल्यू g, s का वैल्यू h. ठीक है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. नाउ इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो यू कैन क्लियरली सी कि ये g डाउनवर्ड्स है एंड इट इज ऑलवेज मूविंग डाउनवर्ड्स. तो व्हाई नॉट टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो मेरे इक्वेशंस ऑफ मोशन कुछ ऐसे दिखेंगे. v इज इक्वल टू gt. s का वैल्यू क्या रहेगा? हाँ, s का वैल्यू क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी इनिशियल इधर क्या, इसको क्या लेंगे अपने y इज इक्वल टू 0, राइट. दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 0. तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन को y ले रहा है, तो y इज इक्वल टू h माइनस h. कैन यू सी दैट एट एनी इंस्टेंट, लेट्स से इट हैज कम डाउन बाय डिस्टेंस y एंड उसका अभी का इंस्टेंटेनियस हाइट है h. तो यू कैन सी दैट y इज सिंपली व्हाट, h माइनस h, एंड दैट वुड बी इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर्ड. ठीक है, एंड द थर्ड इक्वेशन would be v square is equal to 2g into y. All right, so these are the important equations that you should remember. All right, now the next case is, let's say you project a particle upwards. एक certain height h से आप एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हो u स्पीड से. तो ये कैसे मूव करेगा? ऐसे ऊपर जाएगा और ये नीचे आके एक सर्टेन स्पीड से टकराएगा, है कि नहीं. ना आपसे इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो मैक्सिमम कितना हाइट उठा फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब h मैक्स. आपको इसका टाइम पूछा जा सकता है, t कितने टाइम में वो नीचे गिरा, t इज इक्वल टू t. ठीक है, और कितने स्पीड से गिरा ये पूछा जा सकता है. ऑलराइट, नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस? नाउ इसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से नीचे आने का टाइम ढूंढते हैं. तो आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू डू दैट. तो लेट्स गो बाय स्टेप. जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है इसको अपने ले लेते हैं y इज इक्वल टू 0 एंड अपवर्ड डायरेक्शन को ले लेते हैं पॉजिटिव. तो एक्सेलरेशन एज यू कैन सी इज g डाउनवर्ड्स. तो अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वुड बी v is equal to u minus gt. v is equal to u minus gt. Can you see that u is positive here and g is negative here? a is minus g, इसलिए इस तरह से आ गया. ठीक है, now this will give you any velocity at any time. किसी भी टाइम का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, आपको उसका वेलोसिटी मिल जाएगा. अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आया मतलब इट इज स्टिल मूविंग अप, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव आया मतलब इट इज स्टिल मूविंग डाउन. ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कितने डिस्प्लेस किया, टोटल कितना नीचे आया. तो इसमें अपने फर्स्ट जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. ऑलराइट, एंड दूसरा जो थर्ड इक्वेशन है दैट वुड बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy. ठीक है, तो y मैंने यहाँ से मेजर किया तो हाइट उसके हिसाब से आपको लिखना होगा. ठीक है, हाइट इसके हिसाब से h अगर वो ऊपर जा रहा है तो h प्लस y होगा. या I'll just write that कि y is going to be, height at any instant would be equal to h plus y. अगर y पॉजिटिव है तो ये ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं h plus that certain height would be the height from the ground. and अगर वो नेगेटिव आया, y का वैल्यू नेगेटिव आया, that means कि h minus that आके उसका हाइट इधर से मिल जाएगा. alright, now how do I find v, t and h max? ठीक है, now the simplest thing to find is h max. h max simply कैसे निकाल सकता हूँ? max height. तो max height निकालने के लिए you can already see that यहाँ से यहाँ ऑलरेडी हाइट कितना है, h है, प्लस यहाँ से यहाँ का हाइट ढूंढ लो. यहाँ से यहाँ का हाइट है केस नंबर 1 विच इज सिंपली u स्क्वायर बाई 2g. तो यहाँ से हमको मिल गया h max. दूसरा ये पूछा जा सकता है कि आपको कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में. तो टाइम लगा नीचे आने के लिए यू कैन यूज दी दिस इक्वेशन. तो उस इक्वेशन को यूज करते हुए तो व्हाट डू आई गेट?
y के बदले क्या लगाऊंगा? देखो ये फाइनली किधर पहुंचा, इधर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, -h है, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, तो यहाँ पे -h सब्स्टिट्यूट करूंगा, विल बी इक्वल टू ut minus half gt square. Now trust me, when you solve this you will get two values of t. तो t का एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, t is equal to some positive value, and दूसरा t का वैल्यू नेगेटिव. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू विल गेट t. तो इसमें से पॉजिटिव वैल्यू का जो t रहेगा दैट वुड बी आवर टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑलराइट, एंड नेगेटिव वैल्यू ऑब्वियसली हम लोग नहीं लेंगे. Now, similarly, last thing that I would that might be asked is with what speed will it fall? तो with what speed will it fall? सीधा थर्ड इक्वेशन यूज करो. तो थर्ड इक्वेशन यूज करने पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g टाइम्स y का वैल्यू क्या होगा, -h हो गया. तो जब -h सब्स्टिट्यूट करो तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द केस वेर यू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि अगर आप एक पार्टिकल को एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हो, लेट्स से आपने नीचे की तरफ यू स्पीड से फेंका, तो एक सर्टेन स्पीड से टकराएगा नीचे, h हाइट नीचे आया, एंड यू कैन सी दैट कंप्लीट मोशन इज डाउनवर्ड. सो व्हाई नॉट टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, g. ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट राइट द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. और हाँ, बाय द वे, व्हाट इज दिस, y इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस जी टी, क्योंकि g पॉजिटिव है, डाउनवर्ड ले हमने पॉजिटिव. दूसरा s का वैल्यू क्या रहेगा, एट एनी इंस्टेंट ये y हाइट मतलब y डिस्टेंस नीचे आया तो उसका हाइट क्या रहेगा, h. तो y इज इक्वल टू h माइनस h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. एंड उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वुड बी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gy. तो दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको यूज करके आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं. इफ आई आस्क यू व्हाट्स द स्पीड व्हेन इट रीचेस द बॉटम, तो उसमें आप थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, y का वैल्यू क्या लगा देंगे, h. एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कितना टाइम लगेगा उसको नीचे गिरने में, तो ऑल यू नीड टू डू इज ये y का वैल्यू h सब्स्टिट्यूट कर दो, y का वैल्यू h या फिर स्मॉल h का वैल्यू 0 जब यहाँ पे नीचे गिरे, तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक, एंड t का जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको हमें सिलेक्ट करना है. ऑलराइट. So I hope you understood this case as well. All right. Now अभी अपने the next part of this chapter that is graphical representation of motion देखते हैं. ठीक है. इसमें अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं. तो फर्स्ट सेट ऑफ ग्राफ्स that we'll be looking at is the position time graph. पोजिशन टाइम ग्राफ या फिर उसको XT ग्राफ भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ XT ग्राफ में से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है वो देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव अस द वेलोसिटी, दैट इज dx/dt, एंड द स्लोप ऑफ सेकेंट विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज Δx/Δt. नाउ इसमें जैसे कि देख सकते हैं कि अलग अलग मैंने इधर केसेस ड्रॉ कर रखे हैं, तो विल लुक एट द केसेस इंडिविजुअली. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस जो है उसमें आप देख सकते हैं कि XT ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज पैरेलल टू t. दैट मीन्स हर इंस्टेंट में पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड है. दैट मीन्स द वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो 0. ऑलराइट. मतलब द पार्टिकल इज एट रेस्ट. वो कहाँ पे है पार्टिकल, एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x. अगर ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता, मतलब पार्टिकल इज एट द ओरिजिन ऑलवेज, इट इज एट रेस्ट एट दी ओरिजिन. अगर नेगेटिव साइड में ड्रॉ करता, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करता, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इज एट रेस्ट एट दी नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पे. नाउ द सेकंड केस इज यू हैव ए स्ट्रेट लाइन XT ग्राफ, बट उसका स्लोप जो है इट इज कांस्टेंट, सॉरी उसका जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव. दैट मीन्स कि इसका वेलोसिटी जो रहेगा वो क्या है, पॉजिटिव. एंड सिंस द वेलोसिटी इज फिक्स्ड, ये स्लोप देख सकते हो कि इट इज फिक्स्ड, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0. ऑलराइट. सिमिलरली अगर इस केस में देखें, यू हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप मीन्स वेलोसिटी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, एंड तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, 0, सिंस द लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. एंड दूसरा चीज ये देख सकते हैं कि इसका स्लोप फिक्स्ड है. अगर स्लोप फिक्स्ड है मतलब v फिक्स्ड मतलब एक्सेलरेशन is 0. Now
दूसरे तरह से अब अगर देखें तो अगर कर्व्ड ग्राफ्स देखें तो कर्व्ड ग्राफ में आपके पास 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, 4 टाइप्स हो सकते हैं. दिस कुड बी पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्राफ और इट कुड बी द नेट ग्राफ इटसेल्फ. ठीक है, तो लेट्स से कि ये वाला ग्राफ है, इसमें यू कुड सी दैट कि x इज इंक्रीजिंग एंड जो इंक्रीमेंट एक छोटे से टाइम इंटरवल में आ रहा है उसके बाद के टाइम इंटरवल में जो इंक्रीमेंट है वो क्या है, ज्यादा. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग यू कुड ऑब्जर्व इज दैट कि हमेशा यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, सॉरी स्लोप क्या है, पॉजिटिव. तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो यू कुड से दैट द वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड यू कुड सी दैट कि एज द टाइम प्रोग्रेसेस ये स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है. दैट मीन्स v इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो व्हाट, पॉजिटिव. एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या रहे, सेम, तो यू कुड से दैट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज increasing. All right, now using the same analysis here you could see that the velocity is always positive because the slope is always positive. तो velocity क्या है, positive, but as you can see the value of that slope या फिर जो steepness of the slope है वो धीरे धीरे घट रहा है. that means acceleration क्या रहेगा, negative. and like I said earlier v और a का opposite sign होगा तो speed क्या होगा, decrease होगा, speed is decreasing. सिमिलरली इस केस में देखो तो xt ग्राफ, तो xt ग्राफ में अगर वो कर्व ऐसे नीचे देख सकते हैं कि समय के साथ x का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, और स्लोप हमेशा नेगेटिव है. स्लोप अगर नेगेटिव है दैट मीन्स वेलोसिटी इज व्हाट, नेगेटिव. ठीक है, एंड एक्सेलरेशन के बारे में बात करें यू कैन सी दैट कि ये इसका जो स्लोप है नेगेटिव वैल्यू में उसका स्टीपनेस क्या हो रहा है, सॉरी इसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो वैल्यू कम होता जा रहा है. मतलब पहले अगर मान लो -5 है तो -3, फिर -2, -1, इस तरह से जा रहा है. दैट मीन्स उसका वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब -5 इज लेस देन -3. ठीक है, उस लॉजिक से देखें तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इट इज पॉजिटिव. तो हियर यू कैन से दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग. सिमिलरली इधर अगर देखें तो स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब v क्या रहेगा, negative. and you can also see that the steepness is continuously increasing, steepness increase कर रहा है, तो acceleration क्या हो गया, negative हो गया, and hence the speed would be increasing. ठीक है, so I hope you understood xt graph. now xt graph में एक बहुत important सा point ये भी आता है कि xt graph cannot be like this, इस तरह से नहीं हो सकता या ऐसे straight lines नहीं हो सकते, because a particle cannot be at multiple positions at the same time. ठीक है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. this implies infinite velocity which is not at all पॉसिबल. ठीक है, ना इसी के बेसिस पे दूसरा जो ग्राफ बनता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ में ज़्यादा फर्क नहीं है. उसके बाकी ये जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, सिमिलर. सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट ए पोजीशन टाइम ग्राफ टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज पोजीशन एट दिस इंस्टेंट माइनस द इनिशियल पोजीशन. ठीक है, तो अगर आपको xt ग्राफ दे रखा है उसके साथ लेट मी जस्ट राइट हियर, यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो अगर आपको xt ग्राफ दे रखा है उसको यूज करके अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज सिंपली xt ग्राफ, जो भी ग्राफ रहेगा उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करना होगा बाय दिस फैक्टर. ठीक है, लेट्स से कि अगर अपना xt ग्राफ इस तरह से, तो लेट्स से दिस इज x नॉट. तो अगर अपना vt सॉरी अपना st ग्राफ अगर प्लॉट करें, तो st ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, ऐसे आएगा. ठीक है, यू विल हैव द सेम स्लोप, बाय द वे विल हैव द सेम स्लोप. ऑलराइट, सो हमने दो तरह के ग्राफ्स अभी पढ़ लिए. कौन सा, एक पोजीशन टाइम ग्राफ और दूसरा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल आल्सो फॉलो द सेम नेचर. ऑलराइट, सो नेक्स्ट सेट ऑफ ग्राफ्स है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से क्या मिल सकता है, देखो जो टैंजेंट रहेगा उसके स्लोप, टैंजेंट का अगर आप स्लोप निकालोगे तो दैट विल बी dv by dt एंड इट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और अगर आप एक सेकेंड ड्रॉ करते हो और उस सेकेंड का स्लोप ढूंढते हो तो दैट विल गिव यू डेल्टा v by डेल्टा t, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन. ऑलराइट, एंड इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है. इफ यू ट्राई टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द
particle. All right, now let's look at different cases of VT graph. तो यहाँ पे देखो सबसे पहला फर्स्ट केस में देख सकते हैं कि here at every time at every instant the velocity is 0, तो इसका ये particle is at rest. All right, velocity भी 0 है और acceleration भी 0 है. All right, now इस तरह का ग्राफ है, इसमें क्या देख सकते हो, velocity is constant, velocity constant and it is positive. Can you see that? And constant है मतलब acceleration क्या रहेगा, 0 रहेगा. Similarly इसमें देख सकते हैं कि velocity again is constant but in this case it is negative and since the velocity is constant acceleration would be what, 0. ठीक है. Now इसमें अभी देखो ये वाले केस में क्या होगा कि velocity time graph is a straight line and straight line with positive slope, और क्योंकि slope positive है तो you can say that कि acceleration, first of all acceleration क्या रहेगा, positive, and you could clearly see at every instant velocity is positive, तो v positive है मतलब speed क्या हो रहा है, increase हो रहा है. ठीक है, since v is positive. Now in this case can you see that कि the slope is negative, तो slope negative मतलब acceleration क्या रहेगा, negative, and since velocity at every instant is positive तो speed क्या हो रहा है, decrease. Alright, now here ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया. फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब हमेशा वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, एंड सिंस द स्लोप इज पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड द स्पीड इज डिक्रीजिंग. सिमिलरली इधर देखें तो एक्सेलरेशन नेगेटिव क्योंकि स्लोप नेगेटिव है एंड इसका वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इज नेगेटिव, दैट मीन्स द स्पीड इज इंक्रीजिंग. Is that clear? Now specifically I like to point out that in all these cases this one and this one acceleration is constant. ठीक है, ये चारों केस में acceleration क्या रहेगा, constant. Now in the next 4 cases as you can see the slope is not constant. स्लोप हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है. तो अगर स्लोप बढ़ते जा रहा है तो what can you say here in this case, can you see that here and in this case, in both these cases acceleration क्या रहेगा, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, एंड इट इज यस सॉरी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग. देख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. इसमें भी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है और इसमें भी एक्सेलरेशन, इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है क्योंकि स्लोप का स्टीपनेस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. ऑलराइट, हियर ऑल्सो द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. All right, now I should be drawing 2 more cases, but before that let's look at this one. अगर आपको VT ग्राफ के अंदर का एरिया पूछा जाए तो एरिया देखें तो इसके टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया को अगर मैं A1 लेता हूँ, टाइम एक्सिस के नीचे के एरिया को A2 लेता हूँ, सो इधर से मुझे 2 इंफॉर्मेशन मिलेगा. इफ आई वांट डिस्प्लेसमेंट दैट इज सिंपली A1 माइनस A2. ठीक है, एंड अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए सो दैट इज सिंपली A1 प्लस A2. ये दोनों चीज आपको आ जाएगा. ऑलराइट, नाउ आई जस्ट फॉरगॉट टू ड्रॉ 4 more ग्राफ्स. अगर मान लो कि ये इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, उस तरह से अगर वो डिक्रीज हो रहा होता तो इन दैट केस एक्सेलरेशन वुड बी डिक्रीजिंग. इधर वो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, दोनों केस में वो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा. और अगर एक्सेलरेशन इस तरह से जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा. ऑलराइट, ना ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ना इसी के बेसिस पे आप स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. तो स्पीड टाइम ग्राफ में आपको बस एक ही चीज याद रखना कि स्पीड कैन नॉट डिक्रीज, मतलब वो जो ग्राफ रहेगा, सॉरी स्पीड डिक्रीज नहीं, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा. तो इफ यू वांट टू राइट द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम में से स्लोप ऑफ टेंजेंट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, फाइन, और स्लोप ऑफ सेकंड में से भी आपको क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा. बट स्पीड टाइम ग्राफ में एक ही चीज याद रखना है कि इट इज नेवर नेगेटिव. ठीक है, बस बाकी सब इसका सिमिलर है. एंड इफ यू हैव फॉर एग्जांपल अगर आपको VT ग्राफ दे रखा है इस तरह से ग्राफ दे रखा है, तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड को मैं V मॉडुलस ले लेता हूँ, तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे रहेगा, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको एज इट इज ड्रॉ करो और जो नेगेटिव पार्ट है उसका मिरर इमेज बना दो. सो दैट वुड बिकम योर स्पीड टाइम ग्राफ. सिमिलर टू पोजीशन टाइम ग्राफ,
एक इंस्टेंट पे पार्टिकल के मल्टीपल स्पीड वेलोसिटीज नहीं हो सकते, तो दैट मीन्स कि ऐसे ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है वीटी ग्राफ का, ठीक है। सो दैट वाज वेलोसिटी टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट वी लुक एट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट वी लुक एट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी dA by dt and it's called jerk. All right, it is the rate of change of acceleration with time. Similarly, slope of secant will give you delta A by delta t, which is the average jerk. ठीक है, एंड दिस ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा, इंटीग्रल ए डी टी, और इंटीग्रल ए डी टी सिंपली क्या आ जाएगा अपने को, डेल्टा वी, विच इज चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, इट डजंट जस्ट गिव यू वेलोसिटी, इट गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। नाउ लेट्स से यू हैव एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लाइक दिस। तो इसमें देख सकते हैं कि एक पार्ट जो पार्ट ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव एंड द अदर पार्ट इज नेगेटिव। तो अगर ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, तो सिंपली डेल्टा V विल बी A1 माइनस A2, ऑलराइट, सो यूजिंग द प्रॉपर यूनिट्स, फाइन। सो दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट वी लुक एट अनदर इंपॉर्टेंट ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स छोटे छोटे मिस्टेक कर लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू सी इज दैट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा चीज, वो कभी डिक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहेगा। आप भले एक पॉइंट से जाके एक पॉइंट से कहीं और गए, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट खैर जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा वो बढ़ते ही रहेगा, ऑलराइट। सो इफ यू हैव ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लाइक दिस एज शोन हियर, देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे चालू हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, एंड देन वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते गया टिल टाइम t1, एंड देन वो डिस्प्लेसमेंट घट के t2 हो गया, ऑलराइट। सो इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, dt ग्राफ ड्रॉ करने बोलो, तो जहां तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीज हो रहा है उसको एज इट इज इंक्रीज कराते जाओ। ये यहां से यहां तक इंक्रीज हो गया, वो एज इट इज यहां से यहां t1 टाइम तक, देखो t1 टाइम तक s1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी तरह से t1 टाइम 0 से t1 तक वो सेम ग्राफ फॉलो करेगा। नाउ जैसे ही वो डिक्रीज होने लगा तो आपको कुछ नहीं, उधर से आपको उसका मिरर इमेज बनाना है। तो ये देख सकते हैं, ये ऐसे नीचे की तरफ गया, तो हमें ऐसा ग्राफ बनाना है जो कि मैंने यहां बनाया। एंड देख सकते हैं कि देयर इज अ चेंज हियर s1 माइनस s2, वो s1 माइनस s2 इसको लेट्स कॉल दैट डेल्टा s, एज इट इज ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्चुअली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर खैर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ठीक है। तो इसको Vx ग्राफ भी बोलते हैं। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है वो देखते हैं, राइट। नाउ एक्सेलरेशन एज यू नो कैन बी रिटन एज व्हाट, v dv by dx, एंड ये dv by dx जो है वो क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक Vx ग्राफ है एंड दिस इज द कर्व लाइक दिस, एंड किसी भी एक पॉइंट पे, लेट्स से दिस पॉइंट, करस्पॉन्डिंग एक सर्टेन वैल्यू ऑफ x पे एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रहेगा। उस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालोगे, तो उस स्लोप का वैल्यू और उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get acceleration, that is velocity multiplied by slope gives you acceleration. Now velocity versus position ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि दिस पर्टिकुलर ग्राफ कैन एग्जिस्ट इन ऑल दी 4 क्वाड्रेंट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। देखो हम लोग जब एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी, जो भी टाइम बेस्ड ग्राफ्स होते हैं, वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रखते हैं, बिकॉज सारा कैलकुलेशन t इज इक्वल टू 0 से चालू होता है। और अगर मान लो कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जहां पे t इज इक्वल टू मतलब नेगेटिव टाइम पे भी अगर दे रखा है, तो उसका मीनिंग यही होता है कि जब आपने कैलकुलेशन शुरू किया या जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, उसके पहले क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन शुरू किया उस पॉइंट को t इज इक्वल टू 0 लिया जाता है, राइट। नाउ पोजिशन ऑन द अदर हैंड डजंट मैटर, वो पार्टिकल पॉजिटिव x पे भी हो सकता है, नेगेटिव x पे भी हो सकता है, एंड उसके हिसाब से एक ही जगह पे
अलग अलग वेलोसिटीज हो सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल होता है ऑसिलेशन का। मान लो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो जब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे जाने वाला वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, आने वाला वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वीएक्स ग्राफ में वीएक्स ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप, कुछ भी शेप हो सकता है, और एक ही जगह पे अलग अलग वेलोसिटीज हो सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन एक ही चीज याद रखना, एक समय पे दो वेलोसिटीज नहीं हो सकते, बट एक जगह पे दो वेलोसिटीज हो सकता है। सो दैट इज आवर वीएक्स ग्राफ। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ इज आवर एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो उसमें एरिया क्या मिलेगा, इसमें जो की पॉइंट है दैट इज द एरिया एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन में। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ इज सिंपली एडीएक्स का इंटीग्रल, और मैंने पहले बता दिया कि इंटीग्रल एडीएक्स क्या रहता है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इफ यू हैव एन एएक्स ग्राफ, और इसमें देख सकते हैं कि ये x1 है और ये पॉइंट x2 है। सो द एरियाज हियर देयर इज अ पॉजिटिव एरिया एंड देयर इज अ नेगेटिव एरिया। ठीक है, तो इसमें ये A1 और ये वाला एरिया A2 होगा ना। इसमें हमेशा आप जैसे कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ये दिमाग में रख दिया कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो वो गलत है। यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि पार्टिकल जा कहां से कहां रहा है। अगर पार्टिकल x1 से x2 जा रहा है, x1 टू x2 जा रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x, द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग। तो अगर वैल्यू ऑफ x इंक्रीज हो रहा है तो ही आप इसका वैल्यू जो रहा है, मतलब v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 कैन बी रिटन एज a1 माइनस a2। ठीक है, लेकिन अगर मान लो पार्टिकल x2 से x1 जा रहा है, x2 से x1 जा रहा है, देन कैन यू सी दैट कि x का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे जाओगे तो x का वैल्यू क्या होगा, घट रहा है। नाउ दिस इज वैलिड फॉर दी सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल। बस ये याद रखना x बढ़ रहा है या x घट रहा है, वो एक चीज देखना होता है। तो इन दिस केस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 विल बी a2 माइनस a1। नीचे वाला एरिया पॉजिटिव, ऊपर वाला एरिया नेगेटिव, इस तरह से आपको लेना होगा। नाउ सिमिलर टू वीएक्स ग्राफ, एक जगह पे मल्टीपल एक्सेलरेशंस हो सकते हैं। सो इसके जैसे ही आप कैसा भी एक ही इस तरह से एक ही पॉइंट, मतलब एक ही जगह पे नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसा मर्जी ग्राफ इसमें बना सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी 4 क्वाड्रेंट्स। ऑलराइट, ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। नाउ लेट्स इमेजिन देयर आर टू पार्टिकल्स A एंड B, एक्स एक्सिस पे मूव करते हुए। A का x कोऑर्डिनेट है x1 एंड B का x कोऑर्डिनेट है x2 विथ द साइन। इट कुड बी एनीवेयर, ओरिजिन पे हो सकता है कोई एक पार्टिकल, कोई पार्टिकल नेगेटिव में हो सकता है, जो भी है ये कैलकुलेशन विथ द साइन यूज करना है। नाउ A इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v1, B इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v2 एंड A has an acceleration a1 while B has an acceleration a2. Now, when this is all with respect to ground. Now, if I say with respect to one of the particles, let's say A, तो अगर A के रिस्पेक्ट में अगर मैं ये कैलकुलेशन करूं तो आपको दिमाग में ये चीज करना है कि आप A पे बैठ जाओ। Let's say you sit on A. So for you, A will be at rest. For you, A will be at rest. एंड एक तुम्हारे लिए B किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। द बेस्ट एग्जांपल इज, मान लो आप 100 के स्पीड में हाईवे पे कार चला रहे हो और आपका फ्रेंड या फिर कोई और कार 120 के स्पीड से आपको ओवरटेक कर रहा है। तो जब आपको ओवरटेक करेगा तो आपको ये नहीं लग रहा कि वो 120 के स्पीड से जा रहा है, आपको ये लगेगा कि वो 20 के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर वो आगे से आता है, मान लो आप 100 के स्पीड से जा रहे हो, 120 के स्पीड से आ रहा है, तो आपको वो काफी फास्ट लगेगा। तो वो विथ रिस्पेक्ट टू यू वो कितने के स्पीड से आता हुआ लगेगा, 220 के स्पीड से आता हुआ लगेगा। दिस इज कॉमन ऑब्जर्वेशन ना। तो उसी लॉजिक से अगर आप A पे बैठ जाओ तो B का पोजीशन वुड बी XBA, which is position of B with respect to A. Similarly, velocity will be velocity of B with respect to A and acceleration would be acceleration of B with respect to A. Now, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? XBA is simply XB minus XA। ठीक है, और what is XB? X2 और ये क्या है X1। तो you could write it as X2 minus X1। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, मतलब V2 माइनस V1।
ठीक है. एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए will be acceleration of b minus acceleration of a which is a2 minus a1. You should understand ये कैलकुलेशन करना कैसा है. जब आप with respect to some particle बोलते हो तो that particle becomes the observer and जो दूसरा particle है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो. तो इधर देखो, इधर ऑब्जर्वर कौन है? a है. तो a के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर will be position of the particle minus position of the observer. Similarly, velocity of the particle with respect to observer will be velocity of particle minus velocity of observer. उसी तरह से acceleration भी. ठीक है. Now this all should be very importantly with sign. ठीक है. आप एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, उसके बाद ये बाकी सबका प्रॉपर साइन के साथ ही लगाना पड़ेगा. ठीक है. नाउ इसमें दो कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है कि एक होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है. तो सेपरेशन कब होगा? दो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर कब जा रहे होंगे? तो मैं दो कंडीशंस बताता हूं. एक कंडीशन तो आप देख सकते हैं, लेट्स से कि एक पार्ट इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, ए और बी का. ठीक है. तो ये दोनों सेपरेट कब हो रहे होंगे? कैन यू सी दैट दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन? तो सेपरेशन तब होगा जब v2 इज ग्रेटर देन v1. कैन यू सी दैट v2 इज ग्रेटर देन v1? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस वुड बी सिंपली v2 माइनस v1. ऑलराइट. नाउ उसी तरह से दूसरा केस क्या होगा सेपरेट होने का? मान लो कि a जो है इट इज मूविंग लाइक दिस v1 से, और ये b जो है इट इज मूविंग लाइक दिस v2 से. हियर इट डजंट मैटर कि v1 बड़ा या v2 बड़ा, इन ईदर केस वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ठीक है. द रिलेटिव पोजीशन इज इंक्रीजिंग इन दिस केस. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये है कि x रिलेटिव इंक्रीजेस. समझ में आ रहा है? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए. इसमें अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैलकुलेट करें तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? v2 माइनस माइनस v1. तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? v2 प्लस v1. ठीक है. उसी तरह से मैं अप्रोच की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो अप्रोच कब होता है? दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच कब करते हैं? अप्रोच तब करेंगे अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, लेट्स से A मूविंग विथ v1, B मूविंग विथ v2. तो अप्रोच तब होगा अगर v1 इज ग्रेटर देन v2. एंड ध्यान रहे इसमें x रिलेटिव शुड डिक्रीज. समझ रहे हो? x रिलेटिव शुड डिक्रीज. उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. अच्छा, बाय द वे x रिलेटिव डिक्रीज होगा, दैट मीन्स dx रिलेटिव बाय dt विल बी व्हाट? पॉजिटिव. एंड इधर क्या रहेगा? dx रिलेटिव बाय dt वुड बी नेगेटिव. ऑलराइट. नाउ अब अप्रोच ऐसे केस में क्या होगा जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे होंगे. तो इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? सॉरी, ये फर्स्ट वाले केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी v1 माइनस v2. एंड इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वुड बी v1 प्लस v2. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन. नाउ आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स so that you get a clear idea on this topic. Okay, now let's look at a problem to reinforce this idea. So you have two particles A and B, ये one chasing the other. ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाएगा कि ये thief है और ये पुलिस है, ऐसे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिया जाता है. So let's say कि A is moving with a constant velocity v. ये चीज velocity है वो constant है, and B has a constant acceleration. ठीक है. And B was initially at rest. Initially B was at rest and इन दोनों के बीच का सेपरेशन s है. तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि what could be the maximum value of s so that A catches B.
ठीक है, व्हाट इज दी एस मैक्स कितना, सो दैट ए कैचेस बी, एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने टाइम में कैप्चर करेगा वो भी मैं आपको बोल सकता हूं, एंड ऑल्सो फाइंड दी टाइम सो दैट ए कैचेस बी फॉर द सेम कंडीशन ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ हाउ डू यू सॉल्व दैट, तो इस चीज को फील करो कि ये जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ते ही जा रहा होगा। तो देयर विल कम अ टाइम जब इनके बीच में अप्रोच कब हो रहा होगा, अगर ए को बी को कैच करना है तो हमेशा इनके बीच में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। तो वो अप्रोच कब तक रहेगा, जब तक ए का वेलोसिटी बी के वेलोसिटी से ज्यादा है, बट बी का वेलोसिटी हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो देयर विल कम अ टाइम व्हेन बीज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन एज वेलोसिटी। वो पॉइंट अगर आ गया या उससे लिमिटिंग केस अगर देखे, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम, तो जिस इंस्टेंट पे दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए उस इंस्टेंट तक अगर इसने ए ने बी को कैच नहीं किया तो नहीं कैच कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद बी फास्ट हो जाएगा और वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, एस का मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज यू कैन कैलकुलेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इफ आई डू द कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी तो कैसा होगा, ध्यान से देखें। तो बी वुड बी एट रेस्ट, बी क्या हो जाएगा, रेस्ट पे, और ए का एक्सेलरेशन, ए का वेलोसिटी क्या होगा, ए का वेलोसिटी होगा v माइनस जीरो, देख रहे हो, v माइनस जीरो, एंड ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो माइनस ए, तो जीरो माइनस ए करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, तो दैट इज ऐसा, समझ में आ रहा है। एंड ये इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है s, ठीक है। नाउ मैं ये चाहता हूं कि a जस्ट कैचेस b, तो आफ्टर सम टाइम, लेट्स से दिस इज एट t इज इक्वल टू 0, सो आफ्टर सम टाइम b यहां पे और a जस्ट इसको कैच करता है एंड इसका भी स्पीड क्या हो जाता है, 0। बोलो क्लियर, कैन यू सी दैट विथ रिस्पेक्ट टू b a इज डिसेलरेटिंग, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, ऑपोजिट टाइम, ऑपोजिट है। तो t इज इक्वल टू t पे, लेट्स से t इज इक्वल टू t पे वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू इज यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन इन दिस रिलेटिव कंडीशन, ऑलराइट। तो इसमें देख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v, और डिस्प्लेसमेंट क्या है s, और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो इफ आई यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज द गिवन v प्लस 2 इंटू माइनस ए टाइम्स एस मैक्स, ठीक है। तो इससे अपने को मिल जाएगा एस मैक्स का वैल्यू v स्क्वायर बाय 2a। सो इफ यू वांट a टू कैप्चर b देन s शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर बाय 2a। अगर s का वैल्यू ग्रेटर देन v स्क्वायर बाय 2a होगा तो a कभी भी b को कैप्चर नहीं कर पाएगा। एंड अगर मैं ये बोलूं कि कितने टाइम में कैप्चर कर रहा है, तो टाइम में कैप्चर कर रहा है गिवन क्या, गिवन ये कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, s है। तो यू कैन जस्ट यूज दी थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें s का वैल्यू तो गिवन है s, ठीक है, और u का वैल्यू इज v इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। इफ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t, एंड इट डजंट मैटर कि वो क्या बोलते हैं एस मैक्स हो या किसी भी कंडीशन हो, उसमें वो उसको जो अगर गिवन दैट इट इज यू नो कैचिंग अप विद बी, तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो ये क्वाड्रेटिक जो रहेगा उसका सॉल्यूशन आपको अनरियल मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको अनरियल सॉल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब वो पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, फाइन। So that is one example. I'd also like to mix this up with free fall, तो उससे भी एक important सा condition दिखेगा, ठीक है। Okay, now let's look at one more problem. Let's say कि एक certain height पे से 20 मीटर हाइट से एक पार्टिकल A को ड्रॉप किया और दूसरे एक पार्टिकल B को नीचे से प्रोजेक्ट किया विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कब मीट करेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है,
अगर आप इंडिविजुअली ए का मोशन और बी का मोशन सिलेक्ट करें तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि यू कैलकुलेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द पार्टिकल्स। लेट्स से मैं विथ रिस्पेक्ट टू ए करता हूं, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए एक चीज नोटिस करना, ए का एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो क्या हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। Now if I calculate with respect to A, so I don't have to care about the acceleration part, only the velocity part. तो अगर मैं velocity part क्या बात करूं तो B जो है, A क्या हो गया सॉरी रेस्ट पे, और B का velocity क्या रहेगा 20 माइनस 0, तो यही हो गया 20, ठीक है। एंड इनके बीच का दूरी कितना है 20 मीटर्स, ऑलराइट। सो ये फॉर A ये कैसे मूव करके आ रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, ऊपर जा रहा होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए ये कैलकुलेशन टाइम इज सिंपली डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर्स, और कितने स्पीड से आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा उसको 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर जाएंगे या मीट कर जाएंगे। एंड इफ आई आस्क यू वेयर विल दे मीट, तो वेयर विल दे मीट, उस केस में आप सिर्फ किसी एक को कंडीशन ले लेना। तो वेयर का कैलकुलेशन अगर मैं करूं, वेयर विल दे मीट, लेट्स से दे मीट हियर, ये यहां से वाई डेप्थ पे, तो अगर वाई डिस्टेंस गया है तो ए का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू 1 पुट कीजिए, g का वैल्यू 10 लगा लो, तो यू विल गेट 5 मीटर। तो ऊपर से 5 मीटर और नीचे से ये 15 मीटर हाइट पे मिलेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ I'd like to give a small variation in this problem, ठीक है। एक छोटा सा वेरिएशन लाता हूं जिससे लेट्स सी कि ये चीज हम लोग वहां अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स से ये 80 मीटर से गिरा, ए को मैंने 80 मीटर से ड्रॉप किया और बी को सेम 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भेजा, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भेजा, या 80, या फिर आई शुड इंक्रीज दिस, लेट्स से मैं इसको 100 मीटर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो 100 मीटर से इसको ड्रॉप किया, तो 100 मीटर से ड्रॉप करूंगा तो इफ आई डू द सेम कैलकुलेशंस हियर, तो कितने टाइम में मिलने वाले वो, कैन वी सी दैट कि आई एम नॉट गोइंग टू डू द स्टेप्स अगेन, यू कैन अंडरस्टैंड। ये सिर्फ 20 को 100 से रिप्लेस करूंगा, तो 100 by 20 gives me 5 seconds. तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस both these particles are going to meet at 5 seconds, है ना। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि लुक एट पार्टिकल बी पूरा घूम फिर के वापस आने में कितना टाइम लगेगा, लेट्स कैलकुलेट दैट। जस्ट एक कैलकुलेट करके देख लेता है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहता है 2u/g, मतलब 2 × 20/10 अगर लेता हूं तो 4 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड में हवा में ये मिलेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज कि बी जो पार्टिकल है वो 4 सेकेंड में वापस ग्राउंड पे आ जा रहा है। तो देयर इज अ लिमिट टू दिस कि मैक्सिमम एक हाइट के बाद, अगर उस हाइट से कम हाइट में अगर आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हो तो ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है। इसमें आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि पार्टिकल बी इज कमिंग बैक टू द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, उसके बाद कैसे मिल पाएंगे 5 सेकेंड में, है कि नहीं। सो दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग, ये 5 सेकेंड वाला आंसर गलत है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि चलो ये 4 सेकेंड में वापस आ गया, उसके बाद बाउंस कर रहा है, इफ इट बाउंसेस बैक देन ये सही होगा। लेकिन अगर बाउंस नहीं कर रहा, अगर वो वहां पे चिपक जा रहा है, तब कब मीट करेगा 4 सेकंड में, तो ये गिर के चिपक गया यहाँ पे, और ए को कुछ और टाइम लगेगा नीचे आने में। तो ऑल यू नीड टू फाइंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए। तो कितने टाइम में मिलेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए, निकाल लो, विच इज √2h/g, √2 × 100/10, तो ये कितना आ गया √20, तो √20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतने टाइम पे ए नीचे आ जाएगा,
Fine. Now I hope you can see that this is greater than 4 seconds. मतलब क्योंकि root of 16 is 4 seconds है ना, तो root of 20 is greater than 4 seconds. तो 4 सेकेंड root 20 मीटर पर सेकेंड लिख दिए, सॉरी, root 20 seconds. तो root 20 seconds में वो नीचे आ जाएगा. So this is the time when they will be meeting. समझ गए? एक पार्टिकल को जितना टाइम लगे, ए पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है ग्राउंड पे पहुंचने में, उतने टाइम पे मीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बी ऊपर जाके नीचे ग्राउंड पे चिपक चुका है. ठीक है. सो ये जरूर याद रखें कि ऐसा एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कंफ्यूजिंग था कि अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करो तो एक आंसर आ रहा था, ऐसा कैलकुलेशन करो तो दूसरा आंसर आ रहा था. ठीक है. सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले चेक करें, दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट्स को कंपेयर कर ले कि क्या वो मीट करेंगे या फिर कोई एक पार्टिकल ग्राउंड पे पहले ही पहुंच जा रहा है कि नहीं. ऑलराइट. सो प्लीज यूज दैट while calculating while using relative motion. Okay, the last concept of relative motion in one dimension is graphs. अगर इसमें जनरली दो टाइप के ग्राफ्स पे बात क्वेश्चन आता है, एक है xt ग्राफ और दूसरा है vt ग्राफ. सो लेट्स से यू हैव टू बॉडीज a एंड b. a का xt ग्राफ ऐसा है, b का xt ग्राफ ऐसा है, एंड एज यू कैन सी दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट. ये दोनों कर्व्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. तो अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसका मतलब, और वो कौन सा पॉइंट है, t इज इक्वल टू टी नॉट एंड x इज इक्वल टू एक्स नॉट. तो इसका मतलब ये हुआ कि a t इज इक्वल टू टी नॉट पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे था, एंड सिमिलरली b भी t इज इक्वल टू टी नॉट पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे था. मतलब दोनों a एंड b they were at the same place, that is x is equal to x naught, at the same time which is t is equal to t naught. मतलब this is the point where they meet. ठीक है. So I could say a and b meet at x is equal to x naught at t is equal to t naught. This is very important. All right. Now similarly अगर मैं vt ग्राफ बोलूं तो लेट्स से कि a का vt ग्राफ ये वाला है और b का vt ग्राफ ये वाला है, एंड कैन यू सी दैट बोथ दीज कर्व्स आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट क्या है, t इज इक्वल टू टी नॉट एंड v इज इक्वल टू वी नॉट. तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो चीज को समझो कि a का t इज इक्वल टू टी नॉट पे वेलोसिटी v नॉट है, एंड b का t इज इक्वल टू टी नॉट पे v इज इक्वल टू वी नॉट है. डज दैट मीन कि ये दोनों मीट कर रहे हैं? नो. इसका बस यही मतलब हुआ कि एट t इज इक्वल टू टी नॉट बोथ हैव द सेम वेलोसिटी. दैट डज नॉट मीन कि दे आर मीटिंग एट t इज इक्वल टू टी नॉट. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब मीट करेंगे, तो लेट्स से दे मीट एट सम टाइम t, इफ एट ऑल दे आर मीटिंग, लेट्स से एट t इज इक्वल टू टी पे मीट कर रहे हैं, तो आप कैसे किसको कैलकुलेट करेंगे? तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी तक दोनों का पोजीशन क्या होना पड़ेगा? सेम. सो दे मीट when position of A and position of B is the same at t is equal to t. I hope you understand this. दोनों को एक ही समय पे एक ही जगह पे होना पड़ेगा, तभी तो वो दोनों मीट करेंगे. तो अगर xa is the position of A and xb is the position of B, तो xa को क्या लिख सकता हूं? xa can be written as initial position of A. ठीक है, इट कैन बी रिटन एज इनिशियल पोजीशन ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए. दोनों का एक डिस्प्लेसमेंट होगा और दोनों का एक इनिशियल पोजीशन होगा. एंड सिमिलरली एक्स बी कैन बी रिटन एज इनिशियल पोजीशन ऑफ बी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी. ना बात ये आता है डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढे, तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली इज, इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स नॉट ए प्लस ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर ए, एंड ये क्या होगा, एक्स नॉट बी प्लस एरिया अंडर बी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी, अगर मान लो कि लेट, और हाँ एक और चीज, अगर मान लो दोनों इनिशियल एक ही जगह पे थे, दोनों इनिशियल एक ही जगह पे थे, तो दोनों का सिंपली क्या करना है, आपको एरिया इक्वेट करना है. ठीक है, वरना आप इनका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए. ये जो भी एरियाज है ए का बी का, आप एरिया कैलकुलेट कर लो, एंड वो एरिया को इनिशियल पोजीशंस के साथ ऐड करो,
और इक्वेट करोगे तो यू विल गेट द टाइम व्हेन दे विल बी मीटिंग. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन एंड दिस चैप्टर एज अ होल, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन. All right, so I'd like to end this chapter with a very important problem. So that is कि आपको x as a function of time दे रखा है, that is x is equal to t cube by 3 minus 5t square by 2 plus 6t plus 7. ठीक है. And you've been asked the displacement and distance traveled in 6 seconds. इस तरह का क्वेश्चन आ गया है. तो आप easily सबसे पहले displacement निकाल सकते हैं. तो what is displacement? Displacement अगर निकालोगे s, it is simply final position minus initial position. तो final position में बोल रहा हूँ तो it is x at 6 seconds minus x at 0 seconds, है ना. तो बाद में कहाँ है, 6 सेकंड्स पे कहाँ है, माइनस पहले कहाँ रहेगा. तो 6 सेकंड्स पे कहाँ रहेगा, आप इधर t के वैल्यू में t के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर लो, 6. तो you'll get 6 cube by 3 minus 5 into 6 square by 2 plus 6 into 6 plus 7, ये हो गया x at 6 माइनस, और अब आप अगर जब 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ 7. ठीक है. सो इफ यू कैलकुलेट दिस, आपको क्या मिलने वाला है, ये इधर से 36 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि एक 3 के साथ कैंसिल हो गया, दिस इज 72 माइनस ये 36 बाई 2 इज 18, 18 इंटू 5 इज 90 प्लस ये क्या आ जाएगा 36 प्लस 7 माइनस 7. ठीक है. सो इसका वैल्यू आपको मिलने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी 108 माइनस 90 विच इज 28 meters. तो 28 meters is the displacement of the particle. ठीक है. Now this is fairly easy. Now standard mistake ये होता है स्टूडेंट्स का कि अगर आपको हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के बदले सीधा सीधा डिस्टेंस पूछा जाए, तो अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाए तो स्टैंडर्ड मिस्टेक ये हो जाता है स्टूडेंट्स का कि वो यही कैलकुलेशन कर लेता है एंड दे विल से दैट दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये नहीं है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव करे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन. सो इफ यू वांट टू से दैट कि यही डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. मतलब वो एक ही तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं हो कि वो ऐसे जा रहा है फिर वो टर्न मार के वापस आया, तो ये नहीं होना चाहिए. तो वो आपको समझाना देखना पड़ेगा. तो वो कैसे देखोगे कि आपको सबसे पहले चेंज अगर हो रहा है, वो अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब उसको रुकना पड़ा होगा, मतलब वेलोसिटी को 0 होना पड़ा होगा. तो पहले वेलोसिटी का फंक्शन लिख लेते हैं. तो इफ आई राइट वेलोसिटी, तो इसको इट इज सिंपली dx by dt. तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस, व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6. ठीक है. एंड इफ द पार्टिकल इज स्टॉप कर रहा है, इंप्लाइज v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. v का वैल्यू 0, v का वैल्यू 0 मतलब क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो इफ यू कैलकुलेट दिस, यू कैन सी क्लियरली दैट t का वैल्यू आ रहा है 2 and 3 सेकेंड्स. आपको क्वेश्चन 6 सेकेंड्स तक पूछा गया है और इसमें आपको ये दिख रहा है कि 2 बार पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 2 बार पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, मतलब 2 बार वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है. अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज लेस देन दिस लीस्ट टाइम 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड्स में पहली बार वो चेंज कर रहा है डायरेक्शन, उससे पहले ही तक का ही मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो उसमें तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. बट 2 सेकंड के बाद वो पलटा, फिर तीसरे सेकंड में फिर से पलटा और फिर वो आगे निकल गया. तो इसका अगर आप मोशन एनालाइज करो तो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है. वो पहले किधर था, अगर ये एक्स एक्सिस लिखे तो पहले किधर था, इट वॉज एट t इज इक्वल टू 0 पे इट वॉज एट 7, x इज इक्वल टू 7 पे था एट t इज इक्वल टू 0. उसके बाद वो गया 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 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक मूव किया. उसके बाद वो फिर से पलटा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे और फिर वो
वापस आगे गए एंड आपको कितने टाइम पे पूछा गया, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अगर यहाँ पे अगर जब मैं डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना चाहूँ तो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे तो आप ये कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कैन यू सी दैट, ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो इसमें हाउ डू यू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड वुड बी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, x at 2 minus x at 0, दिस इज द फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके बाद यहां से यहां का वो देख सकते हो कि वो क्या रहेगा, x at 2 माइनस x at 3। मैंने x at 2 पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, इसलिए, ठीक है। प्लस ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, x at 6 विल बी ग्रेटर, तो x at 6 माइनस x at 3। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो इंडिविजुअल ब्रैकेट्स में मॉडुलस डाल दे तो आपको एकदम करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नाउ आई लीव दिस कैलकुलेशन फॉर यू। आप ये इंडिविजुअली 2 और 0 और 3 और 6 के वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके इधर वैल्यू डाले एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो हियर व्हाट आई वांट यू टू लर्न इज कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया या v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया और आपसे पूछा फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो यू हैव टू मेक श्योर कि क्या वो पार्टिकल कहीं अपना डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर रहा, और अगर नहीं चेंज कर रहा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही उसका डिस्टेंस होगा, अगर चेंज कर रहा है तो इस तरह से आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होगा। All right, so that was motion in one dimension. In the next video, we'll be discussing about the chapter motion in a plane. All right, thank you.